Hi guys, welcome to your very own channel Chronicles of Traders. I'm thankful to everyone who has subscribed to the channel. Our family is growing. Today we start the 10 minutes learning. Today we start with candlesticks and pattern. The agenda of this video is you to understand what are candlesticks, the 3 candlestick patterns you would ever need, and how to utilize this knowledge. Okay. So let's try to understand what are candlesticks. So whenever someone is talking to you about candlesticks, now what will happen? You won't be thinking about this candlestick. It won't be this. Okay. So now onwards, even if you are in sleep, you should be thinking about these candlesticks. The red and green bars should come to your mind, not a candlestick which helps us minimize the darkness. What are candlesticks? So as it's mentioned here, candlesticks are reflection of what buyers and sellers are doing in the market. So according to this statement, every candlestick that you would see on the chart is a representation of a buyer or sellers in the market. So अगर कोई buy करता है in the market, so it will show us the reflection in the manner of green candle. अगर कोई सेल करता है तो हमें कैसे नजर आएगा in the manner of red candle. So that is how it's the reflection of buyers and sellers. Now let's try to understand few facts about candlesticks. The first fact about candlestick is candlesticks charts are developed in the 18th century by Munihisa Homa, a Japanese rice trader. So back then जब राइस ट्रेडिंग होती थी तो मुनीहिसा होमा ने एक पैटर्न देखा. उस पैटर्न में उन्होंने समझा कि ओके ये अगर हम सप्लाई और डिमांड के बारे में सोचे तो हम कैंडलस्टिक्स का यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. तो he was the one who understood this and started applying or started using candlesticks. The other thing is अगर आप कैंडलस्टिक्स का यूज करना चाहते हो तो आपको सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे पहले वाले वीडियो में जाना है और वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अंडरस्टैंड करना है. थर्ड थिंग अबाउट कैंडलस्टिक्स इज कैंडलस्टिक्स पैटर्न शुडंट बी यूज एज अगेंस्ट द ट्रेंड. तो इस अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको बुलिश कैंडल्स पे ध्यान देना है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको बेरिश कैंडल्स पे ध्यान देना है. सो लेट्स मूव अहेड. So as you see, this is a candle. Okay, this is a candle where here what you see is a body. It's called as a body. जो कैंडल की ये जो लाइन बनी हुई है, this is called as a wick or a shadow as mentioned over here. The top of this candle is a high and the bottom of this is a low. So here is the opening. It went low. After going low, it made a low of a price and then it went high and then it closed here. This is a green candle which is also called as a bullish candle. Similarly, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो opening is at the top of this candle, close is at the bottom of this candle. So price open हुआ, उसके बाद एक high बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने एक लो बनाया और यहाँ पे क्लोज हो गया. ओके, सो दीज टू आर विक्स और द शैडो ऑफ द कैंडल एंड द क्लोज इज एट द बॉटम. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ रेड कैंडल और अ बेरिश कैंडल. आई होप यहां तक आपको समझ में आया. सो वी आर गोइंग टू लुक एट 3 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स टाइप्स. द फर्स्ट वन इज लॉन्ग विक कैंडल और कैंडल्स. सेकेंड वाला है एनगल्फिंग कैंडल एंड थर्ड वाला है इनसाइड बार कैंडल. So these are the 3 important candles that we should or anyone should know about it. So what are long wick candlestick? अगर आप यहाँ पे देखो तो long wick candlestick का मतलब क्या होता है? Long wick candlestick का मतलब होता है कि इस candlestick की जो wick है वो बड़ी है. Okay? So कितनी बड़ी है? It should be the
2 times, at least 2 times of the body. So ये ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद एक लो बनाया, लो बनाने के बाद ये बॉडी बनी और फिर एक हाई बनाया और फिर सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने ऊपर बेचा और यहाँ पे क्लोज कर दिया. Although it's a long wick candle and a green candle which is a bullish candle. Okay, but if we see what has happened is ओपन हुआ, ओपन के बाद एक लो बनाया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पे वो क्लोज नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये प्राइस नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ. सो व्हाट हैज हैपेंड इज द बायर्स ट्राइड टू क्लोज हाई, यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश की बायर्स ने, लेकिन सेलर्स ने सेल करने की वजह से यहाँ पे वो क्लोज नहीं कर पाए और यहाँ पे उन्हें क्लोज करना पड़ा, मतलब प्राइस नीचे जाके क्लोज हुआ है. सिमिलरली इन दिस पैटर्न व्हाट वी सी इज सेलर्स ओपन हुआ, सेलर्स ने सेल किया. ओके, सेलर्स ने सेल करने के बाद यहाँ पे उसका लो बना एंड लो बनाने के बाद क्या हुआ, बायर्स ने बाय करना शुरू किया और यहाँ पे जाके क्लोज हो. बट सेलर्स को क्या चाहिए था, यहाँ पे क्लोज हो, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे जाके क्लोज हो. दिस इज अ लॉन्ग विक अगेन और अ शैडो, ऑल्दो द कैंडल इज रेड. We will try to understand more looking at the chart patterns later. The other candlestick pattern is engulfing candlestick. Okay, engulfing candlestick में दो कैंडल्स इन्वॉल्व होती है. एक कैंडल जो है फॉर एग्जांपल बुलिश एंगल्फिंग है, तो एक कैंडल जो है वो है बेरिश कैंडल, जो रेड कैंडल होगी, जिसका ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, लो इधर होगा, हाई ऊपर होगा. और दूसरी कैंडल होगी जो इसका हाई और लो पूरा इमर्स करती होगी या पूरा कवर करती होगी. तो आप देख रहे हो, और ये ग्रीन कैंडल होगी. दिस वुड बी अ बिग ग्रीन कैंडल विच वुड बी कवरिंग द कंप्लीट बेरिश कैंडल. सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज बुलिश एंगल्फ. बुलिश एंगल्फ का मतलब क्या होता है, ये कैंडल जो है ये बेरिश कैंडल को पूरा एंगल्फ कर रही है, पूरा कवर कर रही है. वैसे ही अपोजिट मैनर में अगर हम देखें तो एक बुलिश कैंडल होगी और एक बुलिश कैंडल को एक बेरिश कैंडल पूरा कवर कर रही होगी. तो इसका ओपन, इसका क्लोज, इसका हाई, इसका लो इस कैंडल के अंदर पूरा सिमट जा रहा होगा. इफ यू कैन सी दी कंपैरिजन, आई होप यू आर गेटिंग दिस. लेट्स मूव टू द इनसाइड बार कैंडलस्टिक. So inside bar or inside candle is something which comes after a big candle. Okay, so अब अगर आप देखोगे तो ये एक कैंडल है जिसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, हाई बनाया, लो बनाया, एंड दिस इज अ ग्रीन कैंडल. नाउ इसके बाद एक कैंडल बनी विच इज अ इनसाइड कैंडल, एंड इनसाइड कैंडल का ओपन, क्लोज, हाई, लो इस कैंडल के अंदर है. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज प्रीसीडिंग कैंडल और दिस इज एंड इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल. तो इसके अंदर बनी. अब ये इनसाइड कैंडल कैसे काम करता है, अगर अप ट्रेंड है, ओके, और अप ट्रेंड के बाद अगर एक इनसाइड कैंडल बनी और इनसाइड कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगी वो इस कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देती है, तब आपने जाके एक शॉर्ट सेल लेना है या एक सेलिंग ट्रेड लेना है. अगर आप डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड में अगर एक इनसाइड कैंडल बनी और इनसाइड कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगी उसने इसका हाई, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो आपने अप ट्रेंड में रिवर्सल, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ये रिवर्सल ऑफ द ट्रेड है और आपको अब डाउन ट्रेंड की जगह पे अप ट्रेंड या आपने बाय करना चाहिए. अभी आपने सेल करना बंद कर देना चाहिए और आपने बाय करना चाहिए. सो वी वुड बी लुकिंग एट हाउ टू यूटिलाइज दिस नॉलेज. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस.
अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक और गो टू दैट वीडियो एंड लुक एट और ट्राई टू अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर अप ट्रेंड में है तो हम ये देखेंगे कि अप ट्रेंड में लॉन्ग विक रेड कैंडल बन रहा है या बेरिश एंगल्फिंग बन रहा है या इनसाइड कैंडल रेड कैंडल बन रहा है। तो हम ये तीन कैंडल्स देखेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम देखेंगे कि बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है या इनसाइड कैंडल बन रहा है जो फिर उसका नेक्स्ट कैंडल होगा वो अपसाइड पे ब्रेक कर रहा है, या लॉन्ग विक कैंडल बन रहा है विच इज अ बेरिश कैंडल बट इट्स the wick is longer than the body. Let me try to explain you that. Sellers चाहते थे कि 500 रुपीज पे क्लोज हो, ओके लेकिन बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने उसको क्लोज किया है 495 पे, उस कैंडल को क्लोज किया है 495 पे। So what has happened is sellers have lost and buyers have won. इसका मतलब buyers are coming into the market. That means there is a trend reversal. Now what we are going to do is we are going to go to chart and look at how this can be utilized. But before that, as I always say, आपको हर ट्रेड विथ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो एंटर करना है। सबसे पहले आप आपका रिस्क जानो, उसके बाद रिवॉर्ड के बारे में सोचो। सो सबसे पहले आप सोचोगे स्टॉप लॉस के बारे में और उसके बाद आप सोचोगे रिवॉर्ड के बारे में। तो लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, this should be your funda. Okay, so let's go to the charts and look at how we can utilize this. So guys, as said, हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट जहाँ पे मैंने कुछ लाइंस खींचे हुए हैं। These are the support lines. अगर हम 1 आवर पे देखें तो आपको इस पॉइंट पे नजर आएगा एक लॉन्ग विक कैंडल बनी, राइट। आफ्टर दिस लॉन्ग विक कैंडल छोटे छोटे रेड कैंडल्स बने, मतलब रेड कैंडल्स का मोमेंटम खत्म हो गया है और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ दौड़ा। यहाँ पे एक लॉन्ग विक कैंडल बनी जो ग्रीन कैंडल है, लेकिन सेलर्स ने प्राइस उसका नीचे लेके आया है और यहाँ से एक डाउनफॉल आया है यहाँ तक। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। सो अगर हम लेटेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ओके। सो हम वेट करेंगे कि ये ब्रेक करे 11250 और मैं बोल सकता हूं कि यहां से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। सो आफ्टर 11250 कल प्राइस ऊपर जाएगा, ओके। लेट्स लुक एट मोर कैंडल्स। अगर आप ये वाला कैंडल देखोगे, दिस इज अनदर लॉन्ग विक कैंडल जिसका बॉडी छोटा है और विक बड़ा है, द शैडो इज बिग। यहां से ये ऊपर आया है, यहां से ये ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड है। सो लॉन्ग विक कैंडल हमें क्या बताता है? लॉन्ग विक कैंडल हमें ये बताता है कि देयर इज अ रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड, ओके। देयर इज अ रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड। यहाँ पे डाउन साइड था, यहाँ पे नीचे आ रहा था, यहाँ पे लॉन्ग विक बनी और यहाँ से जो प्राइस ऊपर निकला है। सो दिस इज अबाउट लॉन्ग विक। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड बेरिश और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स. So this what you see is a good example of bullish engulfing candle. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रिसाइडिंग कैंडल है, जो रेड कैंडल है, which is a bearish candle, it's completely covered up with a green candle. So what you can do is after the post engulfing candle breaks the high of this candle, so for example इसका हाई जो है that is 9910.65, जब ये ब्रेक कर दे तो आपने आपका ट्रेड लेना चाहिए और इसका लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। बट इसके पहले ही हमें एक लॉन्ग विक कैंडल दिख चुकी है, राइट। तो आप ट्रेड पहले भी ले सकते हो। अगर आप पहले ही ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, लेकिन आप रुकते हो और देखते हो कि अगर प्राइस रिट्रेस हो रहा है
और उसके बाद अगर ये पैटर्न पे आप लेते हो द प्राइस इज going up from here. So this is a retracement trade. So let's talk about another candle that we have is inside bar candle. We did speak about long wick candle, we did speak about engulfing candle. ये वाला कैंडल जो है वो इनसाइड कैंडल है. इनसाइड कैंडल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बिकॉज ये कैंडल इस कैंडल के अंदर बना हुआ है. तो जब इसका हाई, ये पोस्ट कैंडल जो दिख रहा है ये वाला, वो इनसाइड कैंडल का हाई और प्रिसाइडिंग कैंडल का हाई तोड़ देता है, तब हमने जाके ट्रेड लेना है. एंड दिस वुड बी अ बुलिश ट्रेड और दिस वुड बी अ बाय. और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे कुछ होगा, दैट इज 9026. एंड नाउ यू कैन सी हाउ दैट ट्रेड हैज वर्क. इफ यू कैन सी हाउ पावरफुल दिस इज. सो जैसे हमने सपोर्ट की लाइन बनाई थी वैसे हम रेजिस्टेंस की लाइन बनाते हैं. आई एम लुकिंग एट अ डे चार्ट. दिस इज the resistance line, this is the resistance that we can see. अब हम अगर डे चार्ट पे देख रहे हैं तो आपको ये नजर आएगा कि ये एक बहुत ही बढ़िया बेरिश कैंडल है. दिस इज अ बेरिश एंगल्फिंग बिकॉज इट्स ईटिंग अप. और ये जो कैंडल है ये बड़ा वाला कैंडल इस कैंडल को, प्रिसाइडिंग कैंडल को पूरी तरह कवर कर रहा है. और यहाँ से जो मार्केट नीचे आया है ये आप देख सकते हो. सी हाउ ब्यूटीफुली इट हैज कम डाउन. आप एक काम कर सकते हो, हमेशा आप एक काम कर सकते हो. ओके ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला, इस दिन पे ट्रेड नहीं मिला, फिर उसके बाद इस दिन पे भी ट्रेड नहीं मिला, तो इस दिन पे भी ट्रेड नहीं लिया, इस दिन पे नहीं लिया, इस दिन पे नहीं लिया, इस दिन पे भी नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे प्राइस रिट्रेस हुआ है, राइट. रिट्रेस होने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, ओके, जहाँ पे मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, तब आप जाकर ट्रेड ले सकते हो. ओके, दैट वुड बी अ बेयरिश ट्रेड, अ शॉर्ट ऑफ एनी ऑफ द निफ्टी, और यू कैन बाय अ पी, और वैसे आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो. वन मोर एग्जांपल वी हैव इट हियर. ये बना बुलिश कैंडल, दैट इज बुलिश एंगल्फिंग, और यहाँ से ये ऊपर गया, ये ट्रेड ऊपर गया. सो आप कब बाय कर सकते हो? ये बुलिश एंगल्फिंग बना, उसके बाद जब भी ये ब्रेक होता है, तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो आप एक बाय का ट्रेड ले लीजिए और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए. बेसिकली एज यू हैव सीन द एग्जांपल्स, you need to find these three candles. One candle is bullish engulfing or bearish engulfing. It would be an engulfing candle. Then the inside bar candle, you have to understand the concept of inside bar candle, and the long wick candle. So the long wick candle can be seen in uptrend or in downtrend. So thank you guys for watching this video.